Hello everyone, I'm Ravi and I'm back with the another question of chapter number 2, Structure of Atom, class 11 NCERT. In this video, I'll be discussing question number 52 and it's on page number 68. So first of all, let's have a look on the question and then to its solution. Question is, following results are observed when sodium metal is irradiated with different wavelengths. Calculate number 1, threshold wavelength, number 2, Planck's constant. Fine. So these are the observations which we have got by the experiment. Lambda, that means which is in nanometer, that means the wavelength is 500, 450 and 400 in wavelengths we have measured our what we say velocity, which is 2.55, 4.35 and 5.35 into 10 raised to power 5 centimeters per second. Okay, so these are the observations of the velocities at the particular wavelength which we have observed, which we have seen through our experiments. Fine. So now we have to calculate the threshold wavelength and the Planck constant. So let's begin with the question. Not with the solved question, it's solution. Fine. So solution is, देखिए we can suppose कि हमारा threshold wavelength है, उसको हम suppose कर सकते हैं. क्या suppose करें? Please anybody क्या किसी के माइंड में कुछ चल रहा है तो please let me know about your ideas. ठीक है? But let it be. I'll do it and we just watch it on and do understand. Fine. So suppose threshold wavelength B equals to lambda naught nanometer, which is equals to lambda naught into 10 raised to power minus 9 meter. ठीक है ना? तो मैंने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सपोज किया है लैम्डा नॉट नैनोमीटर और वी कैन से लैम्डा नॉट इन 10 raised to power minus 9 meter. Now, kinetic energy of the given kinetic energy of the radiation, I should say, kinetic energy of the radiation is given by the expression kinetic energy is equals to h within bracket mu minus mu naught, which is equals to half m v square. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? h c को मैंने बाहर लिया कॉमन 1 upon में lambda minus 1 upon में lambda naught, which is equals to half m v square. क्यों? Because mu is equals to c by में lambda. अगर यहाँ mu naught है तो मैं यहाँ lambda naught कर सकती हूँ, तो मैंने किया ही है. तो mu is equals to c by lambda, तो c यहाँ था, c को मैंने कॉमन ले लिया, तो h c 1 upon में lambda minus 1 upon में lambda naught. Now we will be substituting the given experimental values in this expression for calculating out the threshold wavelength. ठीक है, lambda naught हमने threshold wavelength लिया है. So let's begin with the substitution of the given values of the experiment in the expression. hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught is equals to half mv square. Please note down this all things. I'll be now substituting the values. Fine. So I'll be substituting. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करूं मैं. सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो एक्सप्रेशन क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी? इक्वेशन नंबर 1 एच क्या है? एच एज इट इज लिखते हैं हम. And what is the c? c को भी एज इट इज बिकॉज सब में कॉमन आएगा तो 1 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू लिखते हैं. लैम्डा क्या है मेरे पास में? 500. सबसे पहले वाली इक्वेशन बना रही हूँ. माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नॉट जो हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल्स टू हाफ
m एज इट इज, ठीक है, बिकॉज सब में कॉमन होगा। b की वैल्यू फर्स्ट के लिए क्या है, इट इज 2.55। देखिए अगर यहाँ पर इट इज b इंटू टेन रेज़ टू पावर -5, अगर इस 10 रेज़ टू -5 को मैं नीचे ले जाती हूँ तो बन जाएगा, मतलब अगर इस 10 रेज़ टू पावर को मैं इस 2.55, देखिए अगर ये जो मेरे पास b इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 फॉर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 2.55, तो अगर b इज इक्वल्स टू 2.55 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -5 होगा, तो ये इंटर्न क्या बन जाएगा, 2.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट है, ये ऐसे ही होगा। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ लिखती हूँ b के अंदर, ठीक है, b स्क्वायर। तो मेरा सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए वेलोसिटी क्या है, 2.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ये मेरा सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अगर मुझे सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 रेज़ टू पावर -2 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। तो मेरे पास ये है 2.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मैं जो मीटर पे कन्वर्ट करूंगी तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 रेज़ टू पावर -2 से, तो इनटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट which we conducted for the wavelength 500 nanometer, जिसकी हमें वेलोसिटी मिली 2.55। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, HC विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू क्या है 450 है, माइनस 1 अपॉन में लैम्डा जो हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल्स टू हाफ m को एज इट इज लिखते हैं। इसमें अब b की वैल्यू क्या है 4.35 है, तो 4.35 वही सब कुछ इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर्स पर सेकेंड एंड दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ थर्ड इक्वेशन फॉर द थर्ड एक्सपेरिमेंट HC विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन में 400 माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ m एंड b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 5 है, यहाँ 10 रेज़ टू पावर -2 है, तो क्या बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा। तो मैं इसको एज इट इज लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 2.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये स्क्वायर मैं इसी ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रही हूँ इसको, so don't worry, it will become 4.35 into 10 raised to power 3 meters per second। ये भी स्क्वायर है, ये देखो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा रही हूँ और मैंने इज इक्वल टू का साइन भी लगाया, तो प्लीज डरिएगा नहीं कि मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया, ये ब्रैकेट में ही मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। और इसका बन जाएगा 5.35 into 10 raised to power 3 meters per second, ठीक है, स्क्वायर जो करना था। ओके, ये सारी वैल्यूज यहाँ लिख चुकी हूँ मैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी है मेरी। अब मैं क्या करूंगी, अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं डिवाइड करूंगी इक्वेशन नंबर 1 से फॉर कैलकुलेटिंग आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट। प्लीज आप इन सब चीजों को लिख लीजिए एक बार ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं फॉर द फर्दर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। So now what I will be doing, I will be dividing the equation number 3 as you are seeing, this is equation number 3, this is my equation number 3। इस equation number 3 को मैं divide करूंगी equation number 1 से और I will find out the value of lambda naught, that is threshold wavelength, ठीक है। So I am rubbing it all, please pen down all these points which I have noted down on the board, fine। So now, ठीक है, now dividing equation number 3 by equation number 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, लैम्डा माइनस 400 डिवाइडेड बाय में 400 लैम्डा नॉट, ठीक है। इसको डिवाइड किया मैंने, लैम्डा माइनस 500, ओके, लैम्डा माइनस 500, एक मिनट, लेट इट मी,
Okay, okay, okay. It will be lambda naught minus 400 divided by 400 lambda naught and lambda naught minus 500 divided by 500 lambda naught. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर 1 है, which is equals to 5.35 into 10 raised to power 3 meters per second का whole square, which is divided by में इस फर्स्ट वाले का क्या था, एक मिनट, was 5.35, it was 2.55 into 10 raised to power 3 meters per second का होल स्क्वायर. ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है. तो इक्वेशन नंबर 3 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1. ये मेरे को इस तरह से मिला है. इसको फर्दर सॉल्व अगर मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा 5 lambda naught minus 2000 डिवाइडेड बाय में 4 lambda naught माइनस 2000. ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसे कट भी करना चाहूंगी, ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, आई नोट स्क्वायर, लेकिन अब आप देखिए, अगर मैं 10 रेज़ टू पावर 3 का स्क्वायर करूँ, 10 रेज़ टू पावर 3 का यहाँ भी स्क्वायर करूँ, सेम आएगा. तो दिस 10 रेज़ टू पावर 3 एंड दिस 10 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा, ये कट डाउन हो जाएंगे. यू कैन सी ये आराम से कट डाउन हो चुके हैं, है ना, ये आराम से कट डाउन हो जाएंगे. तो इनका जब मैं स्क्वायर करूंगी तो व्हाट आई विल गेट, और 5.35 का स्क्वायर होगा 28.6225 और 2.5 का स्क्वायर होगा 6.5025. इनके स्क्वायर्स की वैल्यू आ गई है. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा लैम्डा नॉट, क्या मिलेगा मुझे लैम्डा नॉट मिलेगा, एक मिनट, मुझे लैम्डा नॉट मिलेगा 6805.537 डिवाइडेड बाय में 12.607. जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी ना तो मुझे लैम्डा नॉट इस तरह से मिलेगा. इसको जब मैंने कैलकुलेट करना है तो मेरे को लैम्डा नॉट की जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है, लैम्डा नॉट की जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 539.8 नैनोमीटर मिलेगी मुझे, 8 नैनोमीटर मिलेगी. ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ 540 नैनोमीटर लिख सकती हूँ. ठीक है, तो लैम्डा नॉट दैट मीन्स देयरफॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको रिप्रेजेंट किया था लैम्डा नॉट से, उसकी वैल्यू आई है 540 नैनोमीटर. ठीक है, चाहिए, ठीक है. तो दिस इज द वैल्यू फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. देखिए, अभी when I was seeing this question I found out हम लैम्डा नॉट की वैल्यू तो निकाल सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के अंदर, हमने निकाल दी, लेकिन इन वैल्यूज के अंदर कुछ प्रॉब्लम है. देयर इज सम रॉन्ग वैल्यूज व्हिच इज गिवन टू अस इन द नोटबुक. सो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली वो नहीं आएगी. मैं आपको बता देती हूँ, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद में वैल्यूज किस तरह से मिलेगी, लेकिन जो एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए वैल्यू वो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगी बिकॉज ऑफ सम इनकरेक्ट measurements given to us in the notebook. ठीक है, तो आपने ये तो नोट डाउन कर लिया होगा. फाइन, 540 नैनोमीटर इज लैम्डा नॉट. ठीक है, तो अब इस लैम्डा नॉट को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी अपनी किसी भी एक इक्वेशन के अंदर. ठीक है, 540 नैनोमीटर मेरी आई है. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या आई है मेरी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, 500 नैनोमीटर. दैट मींस लैम्डा नॉट की मेरी ये वैल्यू है. मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 लेती हूँ, जिसके अंदर मैंने क्या किया था, HC विद इन ब्रैकेट 1 में लैम्डा क्या था मेरा 500 था मेरा, वो उसकी जो वैल्यू आई है इट वाज 530, नहीं 540 आया है ना वैल्यू, 540 नैनोमीटर आई है, 540 नैनोमीटर आया है मेरा वैल्यू किसका, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का. ठीक है, तो 1 में लैम्डा मैंने किया माइनस 1 में लैम्डा नॉट विच इज 540. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू हाफ. m की वैल्यू क्या लिखूं यहाँ पर मैं 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg कर दूं m, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखूं 2.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर कर दूं. यही करूं मैं,
हाँ, अब देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था HC, जो फर्स्ट इक्वेशन है आप उसको चेक कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, HC विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन में 500 माइनस 1 अपॉन में लेमडा नॉट की वैल्यू 540 इज इक्वल्स टू हाफ m की वैल्यू दैट मींस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो मैं बताती हूँ आपको 9.1 × 10⁻³ kg है, और v स्क्वायर, तो वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज 2.55 × 10⁻³ मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर है। ठीक है, जो c की वैल्यू है, मैं यहाँ पर c की वैल्यू भी लिख देती हूँ। h तो था ही, h के मैं h द प्लैंक कांस्टेंट, और c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे जो h की वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू वोंट बी गेटिंग दिस वैल्यू, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की ये वैल्यू नहीं मिलेगी। मिलनी तो यही चाहिए लेकिन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अभी इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी गई हैं, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी गई हैं, वो उनमें थोड़ा सा इनकरेक्ट है, तो इस वजह से वी वोंट बी गेटिंग आवर परफेक्ट करेक्ट वैल्यू फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट, बट द वे the procedure of calculating out the Planck's constant value through the threshold wavelength is this only. We need to substitute the value of threshold wavelength into the expression in any one of the three expressions. जो तीन equations मैंने बनाई थी 1, 2 and 3, इन तीनों में से किसी एक में भी आप threshold wavelength की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको आंसर प्लैंक्स कांस्टेंट का मिल जाएगा। लेकिन सिंस बिकॉज द ऑब्जर्वेशंस आर इनकरेक्ट ओवर हियर व्हिच इज गिवन टू अस, so you won't be getting the perfect and the correct results for the Planck's constant. Fine. So I hope the solution which I have told you regarding the calculation of the threshold wavelength and the Planck's constant is clear to you all. But if anybody is having any doubt regarding the solution or the concept which I have used in this question, then please don't hesitate and write your doubts in the space given below. Well, do watch the next video for the next question of this chapter and do subscribe us. This brings me to the end of the session, and it's me, Rakhi, saying you all goodbye.